fibrous, dense white fibrous connective tissue. यानी internal septum, the partition called septum is completely made up of dense fibrous connective tissue. And similarly ये जो valves हैं, इनके जो flaps हैं, ये भी पूरी तरह completely these are also made up of dense fibrous so you could experience that the green shaded area I have already mentioned, it is made up of dense fibrous connective tissue, and presence of this dense fibrous connective tissue act as fibrous skeleton for heart. तो जो मायोकार्डियम लेयर है वो एक्चुअली सिर्फ इन वॉल्स में मौजूद है, एंड it has two role, this dense fibrous connective tissue. First of all, it gives strength, mechanical strength and fibrous skeleton to the heart, क्योंकि लगातार हार्ट जब बीट करेगा थ्रू आउट लाइफ तो उससे जनरेट फ्रिक्शन और जो वाइब्रेशन की वजह से जो शॉक है वो इन लेयर्स तक जो है ना पहुंचे और वो हार्ट जो है उसको टॉलरेट कर सके अपने ही मूवमेंट को. इसके लिए ये ऐसा बना हुआ है, एंड इट बियर्स पूरा कोर स्ट्रेंथ जो है हार्ट के मूवमेंट का इन पर पड़ता है. ठीक है, तो ये तो इनका काम है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट गिव्स इंसुलेशन. Presence of dense fibrous connective tissue in the septum and in the valves give insulation. That means जब impulse of depolarization for heartbeat generate होकर pass होगा एट्रिया से ventricles तक कभी भी directly नहीं जाता. That what is being asked in assertion reason. Atria से impulse never travels to the ventricles directly. Why? The reason is presence of dense fibrous connective tissue in the valves and the septum. तो पूरी तरह ये वॉल और ये जो वॉल्स हैं ये एक दूसरे से इंसुलेटेड है. क्या है? बोले अगर इंसुलेटेड होंगे तो वो यहां से यहां ट्रेवल कैसे करेगा? तो दैट आंसर यू विल गेट व्हेन वी विल लर्न कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. क्या पढ़ेंगे? The point to be noted, today we have begin with the histology of heart after going through the internal structure. Point to be noted, when a heart is being cross-sectioned, as you have experienced earlier, the atrial and ventricle wall differ in their thickness. Atrial wall are relatively thin and ventricular walls are relatively thick. And the thickest is walls of left ventricle. Walls of left ventricle are comparatively thickest. So whatsoever, point to be noted, chamber के जो walls outwardly है, they are successively made up of three layers: epicardium, myocardium, endocardium. Loose connective tissue, muscular tissue, special muscles called cardiac muscles, followed by finishing layer of simple squamous epithelium. Now, before peeping into the details of cardiac muscles and its properties, the point to be noted is कि ये जो अंदर का पार्टीशन है दो तरह का, दो डायमेंशंस में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये पूरी तरह डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? टू एक्ट एंड परफॉर्म टू फंक्शन फॉर द हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट ऑफर्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनवर्डली बाय अ फाइब्रस स्केलेटन, एंड मोरओवर देयर प्रेजेंस गिव टोटल इंसुलेशन इंटरनली, जिससे एक तयशुदा डायरेक्शन ऑफ इंपल्स मेंटेन रहे, कहीं भी हैप्पैज़र्डली वो पास ना हो. ऐसा आप कह लीजिए. आया समझ में? क्योंकि अभी हम कंडक्टिंग सिस्टम में देखेंगे कि स्पेशल तरीके से डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो हार्ट खुद जनरेट कर सकता है बाय इट्स ऑटो एक्साइटेबल नेचर, वो हार्ट के चारों तरफ एक डायरेक्शन को फॉलो करके ही पास होता है, नॉट हैप्पैज़र्डली एयर ओवर देयर.
due to the presence of that insulating layer formed by dense fibrous connective tissue. Now, what is that cardiac muscle? तो कार्डियक मसल की कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी जो उनकी मौजूदगी से हार्ट को पंपिंग ऑर्गन का नेचर मिला है. What they are? So first of all, cardiac muscles are known for 5 prime properties. Out of them 4 are, first of all, branched cells. कैसे सेल्स है? ब्रांच्ड. और इसके अलावा इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क क्या मौजूद है? नाउ दे आर माइट बी वेरी सिग्निफिकेंट, इन पर हम अलग से बात करेंगे. नेक्स्ट, exhibit always only aerobic respiration, but still it never fatigue, है ना, fatigue condition absent. On these 4 properties together make the heart to act as a myogenic organ by presence of some special modified tissues, which we are going to learn sooner, that what are nodal tissues. Nodal tissues इनके अंदर पाया जाता है जो बॉडी में किसी भी ऑर्गन के अंदर नहीं पाया जाता. None of the body organ would ever make and arrange such significant modified tissue type which are recognized as nodal tissues. और उनकी मौजूदगी से हार्ट को अपना मायोजेनिक नेचर मिलता है, और उस मायोजेनिक नेचर में कोई भी हर्डल, बाधा ना आए, इंटरफेरेंस ना आए, तब तो जाके हार्ट एक लाइफ ड्वेलिंग एक्टिविटी, साइन ऑफ लाइफ यानी हार्ट बीट जैसा एक्शन कर पाएगा. हेंस दीज 4 प्रॉपर्टीज. Together, these are the unique properties of cardiac muscle which make it unique from straighted and unstraighted. क्योंकि cardiac muscles के लिए ये statement दिया जाता है कि it is structurally straighted like and functionally unstraighted like. तो why so? ऐसा क्यों है? क्योंकि अपीयरेंस वाइज ब्लंट एंड फेंट स्ट्रेशंस इनमें है. एक्टिन मायोसिन थोड़ा बहुत वैसी अरेंज होते हैं सार्कोमियर्स बनाते हुए, और फंक्शनली ये इनवॉलेंट्री है. कैसे हैं? दे आर अंडर द एएनएस कंट्रोल ऑफ सीएनएस. एएनएस कंट्रोल ऑफ सीएनएस. आज हम सब टैली कर लेंगे कंसेप्ट्स. तो पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड वी वर on location, first of all, which was very significant. Then I stressed on the discussion of morphology, where you have come to experience the all over appearance, shape, size, dimension of the heart placed in what position, है ना. क्योंकि location तो जो है, let us conclude, mid ventral, in media stinal space, morphologically sulci and gyri होने के वजह से, and feast shaped pumping organ, जो भी उसके डायमेंशन है 12 to 9 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ, है ना, more or less like a feast of a closed feast of a person, and having 2 types of foldings which gives an outer appearance कि हार्ट अंदर ही अंदर 4 chambered है, and those are respectively, ये रहे आपके गायरी और ये रहा सल्कस या सल्का है, जो कि अपीयरेंस देते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. बाहर से ही समझ में आता है. And followed by that, we have proved the internal setup, which could be internal structure could be revealed and concluded by 2 terms. That what we have proved, 4 chambered condition and
presence of valves, presence of valves हार्ट को इंटरनली क्या ऑफर करते हैं? द आंसर इज यूनिडायरेक्शनल, कैसा? फ्लो ऑफ ब्लड विदाउट मिक्सिंग, सब कुछ पढ़ने के बाद ये थे वो कंक्लूजन्स। ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करने के बाद अब हार्ट के फंक्शन यानी फिजियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में एज अ पंपिंग ऑर्गन। इफ आई हैव मेंशन्ड हार्ट टू बी अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, फोर चैम्बर्ड, ठीक है, मायोजेनिक, सिस्टमिक, तो सिस्टमिक और फोर चैम्बर्ड कंडीशन ये शब्द मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन मायोजेनिक और उसके वजह से ये पंपिंग ऑर्गन की तरह कैसे काम करता है, इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए टुडे वी हैव टू कंटिन्यू विद हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ हार्ट। तो हिस्टोलॉजिकली ह्यूमन हार्ट बीइंग फोर चैम्बर्ड वेयर ईच चैम्बर हैविंग अ चैनल covering of heart wall histologically from outer to inner made up of epicardium, myocardium and endocardium, and rest it depends on the thickness, atrial wall relatively thin and ventricular wall relatively thick, लेकिन होंगे यही तीन लेयर्स। लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं, और क्या पूरी तरह ये मसल्स का ही बना है मायोकार्डियम, मस्कुलर नहीं, 85% ही ये है, रेस्ट 15% लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोकार्डियम है। तो इनके वजह से और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हार्ट को इंसुलेशन मिलता है। क्या मिलता है? लेकिन एट अ ग्लांस इंसुलेशन वर्ड सुन के दिमाग में एक हिच आता है, मन में एक बात ये आती है कि अगर इंसुलेटेड स्ट्रक्चर है, लेयर्स है, तो फिर कैसे? यहां तो कंप्लीट इंसुलेशन दिख रहा है, लेकिन खुद मायोकार्डियम भी इंसुलेटेड है बाहर अंदर से। तो जो फ्लो ऑफ करंट या सोर्स ऑफ करंट ये जनरेट करने की एबिलिटी मायोजेनिक रखता है, वो ट्रेवल कैसे करेगा, वो पास कैसे होगा, वो ट्रांसमिट कैसे होगा पूरे सरफेस पे, जिससे कि रिलेटेड फंक्शन ऑफ हार्ट यानी फोर्स इन फॉर्म ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल जनरेट कैसे होगा। तो उसके लिए कार्डियक मसल्स की क्या प्रॉपर्टी है वो अब मैं समझाने जा रहा हूं। इट हैज ओवरकम दैट। अच्छा, इंसुलेशन की इसलिए जरूरत है कि जितना भी ये क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेवलप करे, वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इस्तेमाल हो सके, आसपास डिसिपेट ना हो जाए। Hence that insulation followed by जो कि सबसे पहला प्रायोरिटी था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। क्योंकि डे बिफोर बर्थ जैसी हार्ट बीट शुरू हो चुका होता है बिफोर बर्थ, उसको तो थ्रू आउट लाइफ उस मूवमेंट को एग्जिबिट करना है, और ना केवल करना है बल्कि उसको बर्दाश्त भी खुद को ही करना पड़ेगा, उसके मूवमेंट को। तो उस मूवमेंट को कौन टॉलरेट करता है? दैट मैकेनिकल शॉक एंड स्ट्रेंथ इज बीइंग अचीव्ड बाय फाइब्रस स्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ डेंस फाइब्रस connective tissue and else giving insulation। तो हमें एक नजर में ये देखकर एक नेगेटिव अरेंजमेंट दिख रहा है, बट इट इज अगेन फॉर सम पॉजिटिव रिजल्ट। एक तो स्ट्रेंथ देना, दूसरा इंसुलेशन, जिससे जितना भी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहां से डेवलप होगा इन अ इंटरमिटेंट टाइम ऑफ 0.8 सेकेंड, हर 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल में जो ये रिलीज करता है डीपोलराइजेशन वेव, एक्शन पोटेंशियल, वो ज्यादा से ज्यादा मायोकार्डियम, कार्डियक मसल्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि आसपास डिसिपेट हो जाए। हालांकि थोड़ा बहुत होता ही है। It's the rule of thermodynamics. Any system under work cannot 100% use the energy what it gets. उसका कुछ परसेंट इस्तेमाल कर पड़ता है, कुछ जो है वो डिसिपेट हो जाता है, जिसे हम वेस्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन नेचर में वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज देखेंगे हम बाय द एंड ऑफ द क्लास कैसे हार्ट डाइपोल की तरह बिहेव करते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और कैसे उस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को फिर हम शरीर से बाहर आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम डिवाइस के हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, एंड thereafter could understand the language of heart, whether it is working normally in a rhythm or not. The science is called ECG, electrocardiography. सबको आया समझ में? तो कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, ये तो एस्पेक्ट्स हो चुके हैं। अब इस बात को ओवरकम करते हुए
स्ट्रेंथ मिल रहा है इंसुलेशन, लेकिन इंसुलेशन को ओवरकम करते हुए कैसे कार्डियक मसल्स अपनी इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए समय समय पे एक इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नेचुरल बैटरी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह काम कर पाता है। लेट अस एक्सपीरियंस इट। यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? नाउ सी व्हाट यू नो कि कार्डियक मसल्स, they are known for what type of structure? They have got branched cells. ठीक है, ऐसी ब्रांचिंग है विथ स्ट्रेशंस। फेंट स्टेशंस, और थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे मौजूद है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इनकी ब्रांचिंग, इनको एक रिदम रखते हैं कि एक भी स्टिमुलेट होगा दूसरा अपने आप इधर मूव करेगा विदाउट डिसोसिएटिंग विथ ईच अदर। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांचिंग। यानी एक तक भी करंट पहुंचेगा दूसरे तक अपने आप इन ब्रांचेस से कंडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में भी, इनके बीच में फिलिंग है किसका? कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी इंसुलेशन। अगेन इंसुलेशन। इनके बीच में जो स्पेस है वहां क्या भरा रहता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिनको हम कहते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क। So point to be noted, the whole muscular wall is insulated by epicardium, endocardium and presence of dense connective tissue and containing layer of myocardium, but still myocardium made up of cardiac muscle able to overcome that insulation and transmit its impulse of depolarization or action potential by presence of intercalated disc, because they are actually modified communicated junctions. क्या है ये? Develop from गैप जंक्शंस। एक तरह के ये गैप जंक्शंस हैं। विच कंटेन, अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ये चैप्टर नर्वस सिस्टम में प्रूव होगा। विच कंटेन्स, जब हम साइनैप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जैसे साइनैप्स बनता है ठीक वैसे ही ये जंक्शंस बनते हैं। ये एक सेल है, ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल, और ये आपस में जो है गैप जंक्शन, इसको ऐसे लाइन से, डॉटेड लाइन से ऐसे शो करते हैं। डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क मेड अप ऑफ मॉडिफाइड कम्युनिकेटेड जंक्शंस डेवलप फ्रॉम अ टाइप ऑफ गैप जंक्शन विच कंटेन्स, अभी आप लिख के रखे ये है क्या, उस दिन समझ में आएगा, नेक्सन्स एंड कनेक्शंस। तो इनकी मौजूदगी के कारण, by the presence of these types of specialized gap junctions, है ना, विच एक्ट एज, नाम ही दिया गया कम्युनिकेशन बनाना। इंसुलेशन के बीच भी है ना, जो इंपल्स एक बार ट्रेवल होके जनरेट होके पास होता है, उस कंडक्टेंस को ये हासिल करते हैं
कंडक्टिविटी इन बिटवीन इंसुलेशन, जबकि अगर इंसुलेशन है तो कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल इनके बीच ऐसा अरेंजमेंट है, वही मैं कंडक्टिंग सिस्टम के डायग्राम में समझाऊंगा। इंटरनोडल पाथवेज कैसे पूरे एट्रियम में फैले रहते हैं। तो ये पूरा एरिया क्या है, ये जो वॉल है, इस वॉल को अगर मैं रेडिश प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो बस क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम को हटाने के बाद मुझे रेड कलर का क्या लेयर दिखेगा, मायोकार्डियम। ये रहा मायोकार्डियम पूरा यहां, और इन्हीं मायोकार्डियम में से कुछ मसल सेल्स मॉडिफाई होके नर्वस टिश्यू जैसे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? they are muscles but they never exhibit contractility, else they exhibit what, excitability, conductivity। आया सबको समझ में, जो कि एक नर्वस टिश्यू की प्रॉपर्टी है। तो सच अ टिश्यू इज कॉल्ड नोडल टिश्यू। क्या कहते हैं? नोडल टिश्यूज। तो वो उनका कनेक्शन एक एक मसल सेल के साथ वो बनाते हैं, वो नोडल टिश्यूज, जिसके वजह से, और खुद एक एक मसल सेल आपस में ब्रांचिंग और इंटरकैलेटेड, ये दोनों चीजों के वजह से, है ना, द मसल सेल इज एबल टू ओवरकम इंसुलेशन ऑफ द हार्ट मसल्स या हार्ट वॉल। तो आज आपको इंटरकैलेटेड डिस्क का सही डेफिनेशन मिला। ये तो मैं आपको जब मस्कुलर टिश्यू पढ़ा रहा था वहां पर भी कंपैरिजन में ये सारी बातें बता दी थी, लेकिन आज सही समय है कि व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क। दे आर मॉडिफाइड कम्युनिकेटेड junctions developed by a type of gap junction having those nexons connections, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में हेल्प करते हैं, इंसुलेशन के बीच भी, भले इंसुलेशन है चारों तरफ। तो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग द हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। हार्ट मसल्स की हिस्टोलॉजी में आपको क्या क्या पता चला कि इट बीइंग एन ऑर्गन मेड अप ऑफ मोर देन वन टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स। इसके अलावा इन पर किसका सप्लाई रहता है? बाहर से एक्सट्रिंसिक सप्लाई ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, thereby making heart as a pumping organ। और मोर ओवर हमेशा इनको ऑक्सीजन चाहिए लगातार, एटीपी कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है, और इसलिए वो फटीग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिलैक्सेशन टाइम पूरा होता है। क्या होता है? हार्ट अपने मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान जॉइंट डायस्टॉल क्या पाया जाता है इनमें, इसलिए हार्ट मसल्स नेवर फटीग। ये बात मैं आगे चल के कार्डियक साइकिल में एक जगह क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखवाऊंगा, लेकिन आज यही मेंशन कर दिया कि अगर यहां लिखा है आपने तो जिससे आपको रटना ना पड़े, फटीग कंडीशन इज नेवर एक्सपीरियंस्ड बाय हार्ट मसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इंटरमिटेंट लॉन्ग रिलैक्सेशन पीरियड इन फॉर्म ऑफ जॉइंट डायस्टॉल। अब वो क्यों होता है और कैसे उसका वो फायदा उठाता है, यही बात हम कार्डियक साइकिल में साबित करेंगे। Anyways, that was all about the histology of human heart। अब इसी हिस्टोलॉजी में एक यूनिक मॉडिफिकेशन जनरेट होता है which makes the heart to act as a myogenic organ having the ability to produce the, है ना, एनर्जी ऑफ वर्क डन। जो वर्क डन उसे करना है उसका सोर्स ऑफ एनर्जी कोई बाहरी कोई अरेंजमेंट सप्लाई नहीं है, खुद हार्ट ही है। That is the definition of myogenic nature। Let us experience it under the topic conducting system of heart। What do you mean by conducting system of heart?
conducting of heart या conducting system of heart, nodal system offering autorhythmicity to the human heart. सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कुछ कंसेप्चुअल बातें मेंशन करें. Heart being an pumping organ, offers a work biological act for circulatory system. And a heart being a pumping organ offers a work biological act for circulatory system like a motor pump. Now, so being a biological device, needs source of energy. वो कोई फिजिकल या डे टू डे हमारे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का डिवाइस नहीं है. विद इन द ह्यूमन बॉडी इट इज कंपेरेबल टू अ मोटर पंप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सकिंग एंड पुशिंग द वाटर. बस अंतर यह है कि जो एक फिजिकल डे टू डे लाइफ के टेक्निकल वर्ल्ड का एक मोटर पंप, वाटर मोटर पंप है, वो वाटर जैसे लिक्विड को विच इज लेस विस्कस उसको खींच के पंप करता है, पुश करता है. सेम काम बायोलॉजिकली एक डिवाइस की तरह हार्ट को एक लिविंग बॉडी के अंदर एज अ पंपिंग ऑर्गन उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है. और वो अगर वही काम कर रहा है तो इट्स अ बायोलॉजिकल एक्ट. और वो बायोलॉजिकल एक्ट बॉडी के अंदर किसी सिस्टम का हिस्सा बन के, कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम. एवरीवन गेटिंग द एनालॉगस एग्जांपल? Heart being a pumping organ offering that biological act for the body as a part of circulatory system similar like a motor pump. And if it is so it is being a biological device. It's a biological device, and whether biological or physical definitely needs source of energy. Now, this source of energy is itself from the heart. ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कहीं और से नहीं है, चाहिए इसको भी एनर्जी. वर्क डन, एनर्जी कंज्यूम्ड. अगर ये स्टेटमेंट अपनी जगह सही है तो कहने का मतलब है कि अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आया होगा? कहीं और से नहीं. नाउ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज इटसेल्फ फ्रॉम द हार्ट. in form of electrical energy, in form of electrical energy called impulse of beat. इसको कहते हैं impulse of beat oblique depolarization wave. Depolarization wave होता है वो. What is impulse defined as? है ना, wave of disturbance, है ना, while the charge moves, है ना. तो impulse of beat, क्योंकि हार्ट के एक्शन के दौरान the pumping action is accompanied by some sound, इसलिए हम उसको impulse of beat, हार्ट के पंपिंग एक्शन को हार्ट बीट या बीट कह रहे हैं, impulse of beat.
डीपोलराइजेशन वेव, या फिर बेटर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्शन पोटेंशियल, क्या कहते हैं? तो जो फंडामेंटल बात बताई गई है यहाँ पर कि ठीक है, हार्ट एक बायोलॉजिकल डिवाइस की तरह उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी का सोर्स कहीं और से नहीं, खुद हार्ट खुद ही डेवलप करेगा। और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जिसे हम इंपल्स ऑफ बीट, डिपोलराइजेशन वेव या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसके लिए हार्ट ने खुद कहीं और नहीं, अपने विद इन दी हार्ट उसके मस्कुलर लेयर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में ही मौजूद कार्डियक मसल्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया एज नोडल टिश्यूज विच आर डिफाइंड एज द टिश्यूज विच हैव लूज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एबिलिटी लूज करके एल्स क्या हासिल किया, एबल टू जनरेट एंड कंडक्ट एक्साइटमेंट्स इन फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलाइक न्यूरॉन्स, अलाइक न्यूरॉन्स। Hence, such nodal system represents the conducting system of heart. Hence, such nodal system represents the conducting system of heart, offering an autorhythmicity, offering an autorhythmicity made up of following three components. Yeah, following two components. What are those two components? Nodal tissues or nodal fibers. Nodal tissues and nodal fibers. Nodal tissues are respectively
SA node and AV nodes, and nodal fibers are AV bundle या bundle of and Purkinje fibers. Now these are the three openings. Just below the opening laterally, just below the opening of superior vena cava, laterally present is the SA node. और उस SA नोड से इंटरनोडल पाथवेज, ये भी फाइबर्स ही होते हैं. Just near the junction of the tricuspid valve, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जहां से शुरू होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जहां से शुरू होता है, ठीक वहां पर अगला नोड मौजूद है, दैट इज and this AV node thereafter give rise to a bundles of fibers, AV bundle, a bundle of and soon they divide into right and left fibers till the tip apex तक पहुंचता और वहां जाके ये ब्रांच आउट होकर ऐसे डीप पेनिट्रेट हो जाते हैं इनटू द वेंट्रिकुलर वॉल एज फाइन फाइबर्स. These are called Purkinje fibers. ये तो डायग्रामेटिकली पहले सबका लोकेशन बता दिया गया, बट हाउ दिस सेटअप वर्क्स एंड कंडक्ट द इंपल्स, दैट्स द रीजनिंग पार्ट कि इनका सेटअप ऐसा ही क्यों किया गया है. तो थोड़ी देर पहले आपने हिस्टोलॉजी देखा था और उसमें मैंने क्या मेंशन किया था कि थ्रू आउट एट्रियल वॉल और वेंट्रिकुलर वॉल के बीच है ना कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी कंडक्टिविटी नहीं होता. क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सेप्टम इंसुलेशन मौजूद है. क्या मौजूद है? तो these fibers and their presence overcome that insulation. इसी के लेंथ के थ्रू डाउन द लेंथ ऑफ सेप्टम ही उनसे जो फाइबर गुजरते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, चार्ज का फ्लो है, आसपास डिसिपेट ना होकर बड़े ही तेजी के साथ फास्ट कंडक्ट होकर टिप तक पहुंचता और फिर अपवर्डली फैलता है. तो भले ही एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक कभी भी इंपल्स डायरेक्टली नहीं आ सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस इंसुलेशन, बट हार्ट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ कंडक्शन, नोडल सिस्टम. यस और नो, विच गिव्स द मायोजेनिक नेचर, जिसमें ये सिस्टम के कुछ ऐसे टिश्यूज है जो ना केवल जनरेट करते हैं बल्कि कंडक्ट भी करते हैं उस एक्साइटमेंट को, है ना. उनका पेस ऑफ कंडक्शन अलग अलग जगह है. यहां पर जनरेट करने की एबिलिटी 70-75 टाइम्स है. थोड़ा नीचे आते हैं, यहां भी जनरेट होता है, इट रिड्यूसेस टू 40-50 टाइम्स.
पर मिनट, और नीचे आते हैं बंडल ऑफ हिज, क्या बोलते हैं, दैट इज समथिंग 30 टाइम्स, और नीचे आते हैं तो ये लेस देन 20, 15 to 20 टाइम्स। तो इन पूरे चारों एरियाज में से चार चीज आपने देखा, एसए नोड, एवी नोड, bundle of his and Purkinje, all together make nodal system and all have the ability to generate and conduct the impulse, but their rate goes slow down the length। इसलिए इन सब में से कौन है एक्चुअल पेस मेकर? एसए नोड। बाकी सिर्फ एवी नोड एम्पलीफायर पेस सेटर है और ये सिर्फ कंडक्टर है। तो आगे चल के क्वेश्चन बनेगा ना, एसए नोड खराब होने के बाद भी हार्ट क्यों बीट करता है? क्योंकि एवी नोड उस काम को कुछ समय तक संभाल लेता है। एवी नोड भी खराब हो जाएगा तो भी हार्ट 25 बार 30 बार बीट करेगा, इतना स्लो हार्ट बीट, लेकिन इतने स्लो हार्ट बीट के साथ व्यक्ति अपने डे टू डे काम नहीं कर पाएगा। हेंस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। कैसा सिचुएशन? मतलब मेडिकली कांट बी टेकन ग्रांटेड। मेरी बात आ रही समझ में? अगेन फिर वो मेडिकल एप्लीकेशंस की बातें चली आती है कि ऐसे तो देखा जाए 18,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब के साथ भी व्यक्ति जिंदा खड़ा है। आ रहा है सबको समझ में? मेडिकल साइंस में किसी भी चीज का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, रेंज होता है। क्या होता है? बिलो द बॉर्डर लाइन रेंज जाके भी व्यक्ति शायद नॉर्मल जिंदा रह जाए, परपिचुएट कर जाए, और अबव द रेंज जाके भी, और नॉर्मल रहकर भी शायद डिसऑर्डर्स के साथ उसको लाइफ बिताना पड़ जाए। तो देयर इज अनसर्टेनिटी। लेकिन हम जब थ्योरेटिकली बात को पढ़ते हैं उसको एक रीजनिंग देके पढ़ाया जाता है। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो आज अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसके बिहेवियर अरेंजमेंट से ही तो हार्ट का एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल डिसाइड होता है। लेकिन जो एक्टिविटी वो हर इंटरमिटेंट 0.8 सेकंड में करता है, उसके लिए उसको किस फिजिकल टेक्निकल हर्डल से गुजरना पड़ता है? इंसुलेशन। तो अब बताइए, कंडक्टिंग सिस्टम के पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए? एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट द एक्साइटमेंट एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस ऑफ हार्ट, क्योंकि अंदर तो इंसुलेशन है और मेन किसको पुश पुल करना है? चैम्बर वॉल्स को। तो यहां तक पहुंचना, फिर डाउन द लेंथ जाके यहां तक फैलना। तो अभी मैं यहां एक सीक्वेंस लिखूंगा, पाथवे ऑफ कंडक्शन, सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। तो क्या होता है, जैसे ही एक एक्साइटमेंट डेवलप होता है तो सबसे पहले ऐसे नोड से वो, है ना, ऐसे नोड से पूरे एट्रियल वॉल में फैलता है, और फिर डाउन इंटरनोडल पाथवे से वो एवी नोड में आता है, और ये जैसे आता है ठीक वैसे ही ग्राफ बनते हैं। ठीक है, एवी नोड, फिर एवी नोड उसको कुछ एम्पलीफाई करके बढ़ाकर, क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ 5 मिली वोल्ट, कितना? उस 5 में से 2 मिली वोल्ट ही चाहिए था इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहां से ब्लड सिर्फ यहीं तो पुश होना है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का सिर्फ रोल कितना रहता है? 30%। 70% ब्लड तो अपने आप ही डाउन दी ग्रेविटी यहां से यहां चला जाता है वेल्व के खुलने पर, क्योंकि लास्ट क्लास आपने देखा था यहां क्या मौजूद है? कॉर्डी टेंडिनी, और वो जैसे ही वेल्व खुलेगा प्रेशर से, ब्लड के प्रेशर से 70% ब्लड यहां से यहां आ जाता है, 30% ही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली हाउ मच ब्लड पास ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन? 30% ऑफ द वॉल्यूम। 70% पैसिवली यहां का यहां का यहां आ जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी जनरेट करता है, स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ, एक्शन पोटेंशियल का स्ट्रेंथ कम रहता है, और ये 40 टाइम्स करेगा लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। तो ये पेस मेकर है, यानी हार्ट को 70 टाइम्स बीट कराने की एबिलिटी ये देता है, लेकिन उसको एक्सेलरेट करना वो एवी और ये बंडल्स फाइबर्स करते हैं। तो 5 मिली वोल्ट एक फिगर लिया मैंने, जनरेट हुआ, लेकिन पूरा 5 मिली वोल्ट थोड़ी यहां इस्तेमाल होगा, सिर्फ 2 मिली वोल्ट ही एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होगा। बाकी 3 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्प्रेड होने में, वापस नीचे उतर के इतने में पास। आया समझ में? सबको आया कंसेप्ट समझ में? जैसे आप पढ़ते हैं ना फिजिक्स में भाई, कि एक मैंने यहां पर फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है इधर ऐसा लगाया, ये गया ट्रेवल करके, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो रिड्यूस हुआ, हर्डल्स। एक्चुअल पूरा फोर्स जो लगाया 10 न्यूटन, पूरा 10 न्यूटन से थोड़ी वो गया। अरे यस और नो? सेम कंसेप्ट। तो यहां चाहिए था 2 मिली वोल्ट का करंट जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो, लेकिन जनरेट इसने कितना किया? 5। क्योंकि उसको स्प्रेड करने में भले इंसुलेशन है, फिर भी कुछ हिस्सा तो डिसिपेट होगा ही।
आया सबको समझ में? तो 3 मिलीवोल्ट स्प्रेड होने में नीचे उतर के यहां से यहां ट्रांसमिट होने में भी चला जाता है। फिर ये ट्रिगर होता है तो उसको बढ़ाकर 10 मिलीवोल्ट कितना कंडक्ट करता है, क्योंकि कंडक्ट करते दौरान ही 3-4 मिलीवोल्ट बचेगा, 6 मिलीवोल्ट, उसमें से यहां पर 2 मिलीवोल्ट, यहां 4 मिलीवोल्ट। क्यों? क्योंकि इसको इसको जो कॉन्ट्रैक्शन करना है वो सिर्फ लंग्स की तरफ, किसकी तरफ, जबकि इसको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। यस और नो? तो डिस्ट्रीब्यूशन भले ही अनइक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन भले ही, लेकिन टोटल एनर्जी जनरेटेड इसी के अंदर है। यस और नो? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एक्चुअल यहां का 5 और 10, 15 मिलीवोल्ट में से 2 और 6 मिलीवोल्ट यानी 11 मिलीवोल्ट इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल कितना हुआ? 11 मिलीवोल्ट, लेकिन प्रोड्यूस कितना हुआ था? 15। तो 4 मिलीवोल्ट कहां गया? स्प्रेड होने में, टू ओवरकम द इंसुलेशन हर्डल। आया सबको समझ में कंसेप्ट? अब इसी बात को, ये नॉर्मल हार्ट का रिदम है, और ये कितनी बार ऐसा होगा? 75 टाइम, 70। और हर बार, अब आप देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं, ऐसे नोड, तो एक नॉर्मल ईसीजी वेव, सबको आया समझ में? ऐसे नोड ने काम किया, पी वेव शुरू हुआ ना वेव, तो पी वेव का बनना मतलब ये यहां तक डार्क है, फिर मैंने डॉटेड दिखाया क्योंकि अभी आगे कंडक्ट होगा। इसने जनरेट किया अपने फुल इंटेंसिटी से जितना इसको एक्शन पोटेंशियल करना था, लेकिन वो जनरेट होने के बाद अब आप देखिए ये इंटरनोडल पाथवे है। सबको आया समझ में? ये रहा पी वेव, ये रहा क्यू, ये रहा आर, और ये रहा एस। ये पी आर इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? तो पी वेव बना, जनरेट हुआ, इतना सा हिस्सा क्या एग्जिबिट करता है कि वो स्प्रेड अच्छे से हुआ एट्रियम में और नीचे उतर के आया नीचे। अरे आया समझ में? दिस शेप शोज दैट दैट वेव कम्स डाउन टू द एवी नोड। पी आर इंटरवल क्या कहते हैं इसको? क्वेश्चन ही तो ऐसा बनेगा कि अगर किसी के नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी में पीआर इंटरवल शॉर्ट है, पीआर इंटरवल, तो बताइए हार्ट बीट क्या है, ज्यादा कि कम? ज्यादा, क्योंकि जितना ये कम होता जाएगा उतने पर मिनट हार्ट बीट ज्यादा। या पीआर इंटरवल मिसिंग, क्या मिसिंग है? पी वेव बना और फिर वहीं के वहीं क्यूआरएस चालू हुआ, यानी स्प्रेड तो हुआ लेकिन वो नीचे कंडक्ट नहीं हुआ। दिस इज अ केस ऑफ एरिथमिया। इस शेप, इस पूरे ग्राफ के शेप का एक मीनिंग है, वही मैं आपको यहीं याद करा देना चाहता हूं। पी वेव शोज एसए नोड इज फंक्शनिंग। क्या काम कर रहा है? पी वेव सजेस्ट दैट एसए नोड इज फंक्शनिंग। तो पी आर इंटरवल क्या शो कर रहा है कि इंटरनोडल पाथवे, कौन सा पाथवे? इज फंक्शनिंग। फिर यहां आया, फिर एक एम्पलीफायर की तरह, किसकी तरह? एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर गया, एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। इसने 5 मिलीवोल्ट, इसने 10 मिलीवोल्ट। आया सबको समझ में? तो वो दिखाने के लिए यहां से ग्राफ क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ रहा है समझ में? डॉटेड लाइन यहां तक, अब वो आगे बढ़ चुका है, इवन यहां भी डॉटेड लाइन होगा, एसटी इंटरवल है उसके आगे, मतलब तो क्यू आर एस, 1 क्यू आर एस
One QRS wave shows what? Ventricular contraction, systole. Ventricular या तो R wave कह लो या QRS. एनसीईआरटी में लिखा है कि 1 QRS इज इक्वल टू 1 पल्स. 1, क्योंकि जब जब एक एक हार्ट बीट होगा एक एक पल्स हमें रिसीव होगा. तो क्या रिलेशन है हार्ट बीट और पल्स में, अभी मैं कंक्लूड करूंगा. तो ईसीजी के वेव पे आप देख सकते हैं कि वो जैसे जैसे ट्रेवल कर रहा है. फिर अगला क्वेश्चन, क्यू और एस वेव क्या शो कर रहा है? देयर आर 5 डिफ्लेक्टिंग वेव्स, 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव. पॉजिटिव वेव्स शो करता है हार्ट इन एक्शन, हार्ट इन एक्शन. और नेगेटिव वेव शो करता है डायस्टॉल स्टेज. क्या स्टेज? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज शो करता है क्यू और एस. ये छोटा होता है और ये, इसमें लेस स्ट्रेंथ पास होता है, आया समझ में, और इसमें ज्यादा डीप तक स्ट्रेंथ पास होता है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? थिक. तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ से करंट पास होगा, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा. हेंस द शेप शुड बी डिफरेंट. ये लेसर होता है, ये आया सबको समझ में. अब मान के चलिए किसी का दोनों बराबर बराबर आ रहा है, यानी स्ट्रेंथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या फायदा? जितने तेजी से लंग्स की तरफ गया उतने तेजी से पूरे बॉडी की तरफ नहीं गया. So these are the signs of problem of heart fail condition. इसी को क्या कहेंगे फिर? What is heart fail? Proper oxygenated blood systems organs तक ना पहुंच पाना. जितने वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ला रहा है उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरे शरीर की तरफ पहुंचा नहीं पाता. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हार्ट फेल, या फिर हम उसे लंग कंजेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हार्ट लंग कंजेशन या हार्ट फेल कंडीशन. सबको आ रहा है समझ में? ठीक है. यहां से इंपल्स यहां गया, पहले स्प्रेड हुआ, जनरेट हुआ, स्प्रेड हुआ, नीचे उतरा, नीचे उतरा, फिर यहां से एम्पलीफायर की तरफ फिर जनरेट हुआ, यहां पास हुआ, और फाइनली कुछ समय बाद क्या होगा? एसटी इंटरवल. कौन सा इंटरवल? एसटी इंटरवल सजेस्ट व्हाट? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. क्या होता है ये? यानी रिलैक्स. जॉइंट डायस्टॉल. क्या कह सकते हैं इसे? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल फॉलोड बाय जॉइंट डायस्टॉल. तो ये 4 स्टेजेस आपके सामने बने हैं: पी वेव, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस एंड एसटी इंटरवल. एनसीईआरटी में सिर्फ पी वेव, आर वेव और टी वेव डायरेक्टली लिखा है. यहां लिख सकता हूं मैं एट्रियल डीपोलराइजेशन. क्या लिख सकता हूं मैं यहां? दिस इज एट्रियल डीपोलराइजेशन. पी आर इंटरवल. फिर आर की, आर पे क्या लिख सकता हूं यहां पर? वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, क्योंकि तुरंत ये जनरेट होगा, स्प्रेड होगा और ये सिस्टॉल करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. और टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जॉइंट डायस्टॉल. देखा जाए तो एनसीईआरटी खत्म. बस इतना ही याद रखना है. pathway of impulse in heart. कंडक्टिंग सिस्टम अपना इंपल्स जो जनरेट करता है, ऐसे नोड से सबसे पहले पूरे एट्रियल वॉल में, एट्रियल वॉल से इंटरनोडल पाथवे, वो कहां पहुंचाता है? टू दी एवी नोड. फिर एवी नोड से
फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, फिर देखिए मैं क्या शब्द लिख रहा हूं, यह आया हुआ क्वेश्चन है। सी द pathway sequence of movement of the impulse generated by the conducting system, SA node, atrial wall, फिर आता है इंटरनोडल पाथ से एवी, एवी से बंडल ऑफ हिज, फिर बंडल ऑफ हिज से वो कहां तक जाता है, टू एपेक्स ऑफ हार्ट, एपेक्स ऑफ हार्ट, यहां तक आएगा टिप तक, और फिर पुरकेंजे फाइबर्स से होते हुए, सी द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, जो इंपल्स अपवर्डली upwardly to the ventricular wall, the pathway of impulse in heart या within the heart shows this following sequence of pathway, SA node, atrial wall, internodal pathway से AV node से bundle of his, फिर पूरे टिप तक पहुंचकर एपेक्स ऑफ हार्ट, और फिर पुरकेंजी फाइबर से होते हुए वो ऐसे अपवर्डली मूव करता है। आया समझ में? एंड हेंस द शेप कम्स टू बी स्टैंडर्ड ईसीजी विथ 5 डिफ्लेक्टिंग वेव्स। वही पहले मैंने ईसीजी वेव से आपको समझाया, भले हमने ईसीजी आज नहीं पढ़ा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया है एक स्टैंडर्ड ईसीजी में डिफ्लेक्टिंग वेव्स के शेप कैसे आते हैं, 3 ऊपर पॉजिटिव 2 नेगेटिव, जिसमें पी वेव सजेस्ट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन पीआर इंटरवल शो करता है कि एसए से एवी नोड तक वो प्रॉपरली 0.1 सेकेंड, कितना सेकेंड, पीआर इंटरवल का समय कितना रहता है, ये पीक्यू, पीक्यू इंटरवल, पीआर बोल लो या पीक्यू बोल लो, बात एक ही है, दिस इज 0.1 सेकेंड, कितना, और रेस्ट क्यूआरएस, क्यूआरएस का समय कितना होता है 0.3, आ रहा है सबको समझ में, 0.1 0.3, क्योंकि यहां से यहीं पहुंचना है, जबकि यहां से ब्लड काफी दूर जाना है पूरे बॉडी में और लंग्स की तरफ, तो इन चैम्बर्स को ज्यादा समय चाहिए, जस्ट 3 टाइम्स ऑफ द टाइम ऑफ एट्रिया। आया सबको समझ में? तो ये पूरा टाइम इंटरवल कितना हो गया यहां से यहां तक का, 0.4, और जॉइंट डायस्टॉल का ये समय टी वेव, ये कितना समय है, क्योंकि अगला पी फिर से बनेगा, अगला पी यहां से होगा ना, अरे यस और नो, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाना अलोंग विथ एट्रिया एक समय यूज करके, दैट इज 0.4 सेकेंड, 0.4 1 हार्ट बीट, टोटल 0.8 सेकेंड। अभी आ रहा हूं मैं इस कैलकुलेशन पे, लेकिन यहीं के यहीं आप समझ लीजिए ना कि इसने जैसे जनरेट किया 0.1 सेकेंड के अंदर दोनों ही साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पेक्टिव ब्लड डीऑक्सीनेटेड यहां, ऑक्सीजनेटेड यहां पुश कर दिया, और जब तक ये वो समय है कि जो जनरेट हुआ इस 0.1 टाइम पीरियड में से कुछ समय तो लगेगा ना यहां तक जाके नीचे उतरने में, ये वो समय है पी आर इंटरवल। कौन सा इंटरवल? तो इस वेव का इतना सा हिस्सा क्या शो करता है, ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बाय एसए नोड इनटू द एट्रियल वॉल फॉलोड बाय कमिंग अप टू एवी नोड, और फिर एवी नोड क्या करता है, कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ से, डबल स्ट्रेंथ से एम्पलीफायर की तरह पेस को सेट कर देता है, पेस सेटर। अभी मैं लिखवा रहा हूं कंटेंट, लेकिन पहले याद कर लीजिए आप, एवी नोड इज कॉल्ड पेस सेटर, ये पेस मेकर है। वाई? क्योंकि इन सारे कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है, बाकी डाउन दी लेंथ स्लो होता जाता है। अब ये 15 बार ही कर सकता है 1 मिनट में, तो तुम खुद सोचो ना, अगर इसके भरोसे पूरे हार्ट को छोड़ दिया जाए तो 5 लीटर ब्लड को कितने ज्यादा राउंड्स लगे, मतलब 3-4 मिनट लग जाएगा। अरे यस और नो, 5 लीटर ब्लड को कितना समय लग जाएगा, 4 to 5 मिनट्स लग जाएगा मूव करने में पूरे शरीर के अंदर।
तो बाकी सारे ऑर्गन्स में भी डिले हो जाएगा, क्योंकि किडनी को 22% 1 मिनट में 1 लीटर मिलता है, उसकी जगह हर 1 मिनट में 300 ml मिलेगा। तो सारा फंक्शन डिले होना चालू कर देगा। सबको आया समझ में? मेडिकली इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल सिस्टम फेल हो जाना। क्या हो जाना? मल्टीपल सिस्टम्स फेल हो जाना। एक सिस्टम के फेल होने की वजह से धीरे 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 दूसरे सारे सिस्टम्स डिले हो जाना अपनी एक्टिविटी करने में। सबको आया समझ में? एवरीवन। लेकिन द मेन ओरिजिनेटर ऑफ फ्लोइंग द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी इज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन? बीवीएस। और बीवीएस सबसे कम समय लेता है 5 लीटर ब्लड को पूरे शरीर में घुमा देने में, while oxygenating and deoxygenating it. That's the double circulation concept. डबल सर्कुलेशन को जितने बार अलग अलग तरीके से बोलोगे, अलग अलग एस्पेक्ट सामने आएगा। सबको मेरी बात है? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? इट कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज। The nature of the heart to pump the blood throughout the body in 1 minute in one circulation, while है ना composing it twice। एक बार ऑक्सीजनेट कर देना, दूसरी बार, और दोनों बारी हार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि हार्ट से तो गुजरेगा, ट्वाइस थ्रू दी हार्ट। तो हार्ट 1 मिनट में पूरे 5, दैट आई एम कमिंग टू दी टॉपिक कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? एक नॉर्मल रेस्टिंग व्यक्ति नॉर्मल बैठा हुआ है, नॉर्मल 70-72 बार बीट कर रहा है हार्ट, तो उसका कार्डियक आउटपुट उसके टोटल ब्लड वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाँ, शरीर अगर किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, एज एन एथलीट दौड़ना चालू किया, तब रिवर्स कार्डियक आउटपुट होता है। रिवर्स यानी 2-3 गुना बढ़ जाता है कार्डियक आउटपुट। दैट्स अ गुड साइन। बॉडी इज एंटिसिपेटिंग एंड बैकअप, गिविंग ए बैकअप। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी आप शांत बैठे हैं, आपका हार्ट बीट 65 चल रहा होगा अभी सबका। कितना चल रहा होगा? 65। लेट जाए तो वो 60 हो जाएगा। अरे आया समझ में? हार्ट बीट रिड्यूसेस ड्यूरिंग शॉक एंड स्लीप, बाकी हमेशा नॉर्मल रहता है। और या फिर एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, एल्टीट्यूड, सब में हार्ट बीट क्या होगा? बढ़ेगा। आई एम कमिंग टू द रेगुलेशन पार्ट ऑल्सो, सब इंटर रिलेट हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल रिदमिक जो एक्शन है हार्ट का, वो तो वो खुद ही जनरेट करता है 70 to 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज। वो कैसे, किसके वजह से? आज की क्लास इसी बात पे था। After going through the detailed histology of the complete heart wall, which is characteristically made from outer to inner, epicardium, myocardium, endocardium, एंड रेस्ट, जहां जहां कहीं भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली अंदर के सेप्टम, और आपने देखा भी था डायग्राम में कि इवन कार्डियक मसल्स की ब्रांचिंग के बीच भी फिलिंग कनेक्टिव टिश्यू की होती है, गिविंग स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब वो उसके बीच हार्ट मसल्स जितना भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे, उसको बर्दाश्त कर लेगा हार्ट। क्यों? क्योंकि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिला हुआ है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। साथ ही साथ इंसुलेशन मिला है। लेकिन उस इंसुलेशन को ओवरकम करने के लिए हार्ट मसल्स ब्रांच्ड हो जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क है, जिससे उनकी कंडक्टिविटी में कहीं भी हर्डल, बाधा ना आए। एंड रेस्ट, heart is unique. Human being mammal chordate have got myogenic heart, having the ability to generate its own system of energy, electrical energy, है ना, irrespective of any external source. That defines the myogenic nature of heart. Moreover, it is by presence of some unique modified tissues called nodal tissues. क्या थे वो, कैसे हैं, क्या है, सब बताया यहाँ पर। और फाइनली जब वो उनको हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, तो इनका जो काम है वो कुछ यूनिक है ना। इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंशियल मूवमेंट, इट इज लिटिल बिट डायमेंशनल। पहले लैटरली स्प्रेड हुआ, फिर नीचे आया, सी द डायरेक्शन। ऐसा थोड़ी कि सीधे सीधे जा रहा है, कंडक्टिंग सिस्टम बना है तो यूं आया, ऐसे ऐसे करके स्प्रेड करके चला गया, नहीं। बोले सर ऐसे स्प्रेड हो गया, नीचे उतर के आ गया, ऐसे नहीं आया। कभी भी साइड वॉल से उतर के नहीं आता, बीचों बीच। हाँ, यहां स्प्रेड होता है अंदर अंदर, फिर नीचे उतर के यहां तक आएगा, फिर यहां से डाउन द लेंथ एपेक्स, और फिर ऊपर आया। सबको समझ में? एवरीवन। And that nature of direction of movement is also being depicted in the shape of the graph, in the up and down movement, the up and down movement of the impulse. Impulse का एक वजनदारी मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड है ना 5 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट, ऑल ओवर मैग्नीट्यूड कितना, 15 मिलीवोल्ट। लेकिन वो जो वजनदारी था, वो जो मैग्नीट्यूड था ऑफ करंट, एक डायरेक्शन के साथ, किसके साथ? And any such quantity which moves with the direction and magnitude is a vector quantity. Now that behavior of heart make heart as a dipole.
क्योंकि यहां चार्ज मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद आ रहा है पिछले क्लास का डायग्राम, पेरिकार्डियम, कैपेसिटर, कंडक्टेंस क्या देता है? कैपेसिटर, कंडक्टेंस सबको आ रहा है समझ में? तो वो आ रहा हूं मैं उस चीज पे, लेकिन बिल्कुल एक एक चीज ऐसा याद हो जाना चाहिए। और आज जो मैंने ये बात बताया है वो अपने आप में सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ईसीजी का ऐसे ही बनेगा, व्हाट विल हैपन इफ एवी नोड इज डैमेज, व्हाट विल बी द चेंज इन द ईसीजी। तो एवी अगर डैमेज होगा, क्यूआरएस विल बी मिसिंग। क्या मिसिंग होगा? क्योंकि वेंट्रिकुलर नहीं होगा सिस्टोल। इफ एसटी इंटरवल गेट फ्लैटेंड, एलिवेटेड या डिप्रेस्ड, तो पहले एसटी इंटरवल है क्या, वो आया किस वजह से, वो तो पता होना चाहिए। वही ऑर्डर पता होगा तो अपने आप डिसऑर्डर याद हो जाएगा। फिर पीआर इंटरवल, पीक्यू इंटरवल अगर डिस्टर्ब्ड है, वही एलिवेटेड या ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, तो हार्ट बीट कम हो जाएगा। एक मिनट में जहां 70 बार की जगह 50 बार, 45 बार ब्रेडिकार्डिया क्या हो जाएगा अगर पीआर इंटरवल बढ़ गया। अरे यस और नो? क्योंकि यहां से यहां पास होने में ज्यादा समय, कहा 0.1, उसकी जगह कुल हार्ट को काम करने का समय कितना मिल रहा है? 0.4, पता चला 0.3 हो गया और ये 0.1। दिस इज एरिथमिया, दिस इज। अब आया सबको समझ में? तो दिस इज द कंडक्टिंग बिहेवियर ऑफ हार्ट, मेकिंग टू बी कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। कैसा हार्ट? चलिए, sinuatrial node known as pacemaker, better called heart of heart, 70 to 70 times per minute action potential. Its activity is depicted by P wave on ECG. सही बात है, वो फंक्शनल एक्टिव है। ये ईसीजी में रिपोर्ट में कैसे डिपिक्ट होता है? पी वेव के अपीयरेंस से। पी वेव डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एसए नोड, है ना? जस्ट नोट डाउन अ मिनट। Atrioventricular node, rather pace setter, with 40 to 50 times per minute एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है। तो एनसीईआरटी में एक्चुअली एक लाइन में मेंशन्ड है कि ऑल द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम हैज द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, बट इट गो स्लोअर। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो स्लोअर हो जाता है। तो वही फिगर वाइज में मेंशन कर रहा हूं उस चीज को। AV node and its activity is depicted by QRS wave on ECG.
also called AV bundle. They pass through the septum to conduct the impulse against the insulation. बस इनका यही सिग्निफिकेंस है, जिसको मैं डायग्राम से यहां समझा चुका हूं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनता है, एट्रिया से वेंट्रिकल तक डायरेक्टली क्यों इंपल्स ट्रेवल नहीं होता, जबकि यहां स्प्रेड हो रहा है आपस में, तो यहां भी तो वही मसल्स हैं, वही इंटरकैलेटेड डिस्क है, लेकिन बीच में इंसुलेशन है ना, एनुलर पैड और वेल्व्स की मौजूदगी में, जो कि बने हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय एंडोकार्डियम लेयर, तो इसलिए नहीं हो सकते। तो बंडल ऑफ हिज उस काम को अंजाम देता है, सेप्टम से गुजरने के बाद भी अगेंस्ट इंसुलेशन बढ़िया उसको तेजी से कंडक्ट कर देता है। और पुरकिंजी फाइबर्स, अच्छा फिर इनका भी जो एबिलिटी है वो दैट इज 30 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल। लेकिन इनका जो एक्शन पोटेंशियल है वो काउंट नहीं होता, काउंट हमेशा बोले सर, एक दिमाग में आता है ना कि 70 + 40, अरे आया समझ में, 110 140 हार्ट बीट जो है ना चाहिए, 150 होना चाहिए पर मिनट, बट इट इज समेशन, यहां मैथमेटिक्स आ जाता है। अरे सबको आ रहा है समझ में, क्योंकि इसका रेट इतना ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में ये जो लोग जनरेट भी करते हैं वो मिक्सअप हो जाता है ना, उसका पीछे से इंपल्स आता है, वो समेशन होके आगे पास होके जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सबको आ रही मेरी बात समझ में? इसलिए रेट ऑफ हार्ट बीट कौन डिसाइड करता है? एसए नोड, द पेस मेकर। द डेफिनेशन ऑफ एसए नोड टू बी, एक होता है रट लिया पेस मेकर है, लेकिन क्यों है इसको ऐसे जस्टिफाई करना, मतलब आपने ऐसे 3 अलग अलग मैंने ऑब्जेक्ट्स रख दिए, एक पे स्ट्राइक मारा, दूसरे पे लगा, तीसरे पे लगा, तो वो पहले वाले ने डिसाइड किया, क्योंकि बाकी का जो मोमेंटम है वो तो सम अप हो गया। अरे यस और नो, दैट्स द लॉजिक। तो वही चीज यहां पर हो रहा है, ये जो डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है, यही तो याद रखना कंसेप्ट वाइज। फाइनली Purkinje fibers help to transmit and spread the impulse in thick ventricular wall upwardly, यही उसका काम है। क्योंकि अगेन यहां तक इंसुलेशन के बाद, उस इंसुलेशन से गुजरने के बाद भी इतना डीप सीटेड है, थिन नहीं है, इसलिए तो ये फाइबर्स बना बना के चैनलाइज करके एक एक मस्कुलर जो सेल्स के नजदीक जितना हो सके, क्योंकि जैसे ही वो ट्रेवल आएगा बिना किसी ना लैप्स ऑफ टाइम, समय गवाए, वो बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ जितना ज्यादा हो सके उस पोटेंशियल का पूरा पूरा इस्तेमाल करके वेंट्रिकल्स अपना काम कर सके। आया समझ में? ये है पुरकिंजी फाइबर्स का काम। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम। ये पोर्शन तो सबने लिख लिया होगा। कार्डियक साइकिल शुरू करने से पहले डिफरेंट स्ट्रोक में मैं पहले पढ़ा देना चाहूंगा एक पैराग्राफ, दैट इज
हर चैप्टर में 3 कॉन्जिक्यूटिव चैप्टर में आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। सबको आ रहा है समझ में? अभी अभी कुछ समय पहले आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, उसमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पैराग्राफ में हार्मोनल रेगुलेशन देखा था। क्या देखा था? एम आई राइट? 3 तरह के हार्मोन्स, एडीएच, रास एंड एएनएफ। उसी तरह से इसी चैप्टर में हार्ट किडनी का क्या पैरामीटर है? जीएफआर। क्या है? किडनी फंक्शन व्हाट? इट क्रिएट अ कंडीशन पर मिनट, पर डे, पर आवर, प्रोड्यूसिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विथ सर्टन रेट, यानी पर यूनिट टाइम। वैसे ही हार्ट एज अ प्राइमरी पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अलाइक किडनी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वो भी वो भी 1 मिनट में ब्लड को ही एंटरटेन करता है। हार्ट भी 1 मिनट में एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ ब्लड को एंटरटेन करता है इन अ राउंड, इन अ। सबको आ रहा है कंसेप्ट समझ में? लेकिन दोनों का एंटरटेनमेंट करने का तरीका और मोटिव अलग अलग है। किडनी एंटरटेन करता है टू फिल्टर इट आउट फिजिकली फ्रॉम सम सर्टन डिग्री ऑफ वेस्ट, metabolic waste of the body, whereas heart entertain any volume of blood, है ना, in a circulation twice, once in deoxygenated form, once in oxygenated form, है ना, just to maintain the pace of circulation, just to maintain the, क्योंकि heart being an pumping organ gives that pace to the body fluid, one of the body fluid which is viscous, like that blood, थ्राइस विस्कस ऑफ वाटर, पानी से 3 गुना ज्यादा विस्कस होता है ब्लड। तो ब्लड जैसे विस्कस लिक्विड को थ्रू आउट लाइफ लगातार बिना रुके पंप करना, सच अ यूनिक नेचुरल वाटर पंप वी हैव गॉट व्हिच कांट एवर बी डिजाइन्ड बाय एनी टेक्नीशियन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एनी टॉप मोस्ट आईआईटीएन कांट एवर डू दैट। दुनिया के सबसे बेहतर कॉपर की कॉइलिंग से तैयार हुआ उनका मैग्नेटिक रोटर भी जल जाएगा अगर 10 दिन लगातार आपने एक पानी के पंप को चालू करके रख दिया और पानी फेंकते 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 मोटर जल जाएगा। वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जब घूमता है, यस और नो, ये जो फैन घूम रहा है, जो रोटर बना हुआ है, कॉइलिंग्स बने हुए ना, और वो कॉइलिंग बन के वो क्या है? इट जनरेट व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड। अरे यस और नो? एक समय के बाद वो जो हीट और वो सब जो डिसिपेट और इंसुलेट नहीं हो पाएगा। अब आया समझ में? अरे कुछ आ रहा है समझ में? जहां सारा सब्जेक्ट खत्म बायोलॉजी, वहां से इतने देर से पढ़ा रहा हूं मैं, पागल नहीं हूं। अरे आ रहा है समझ में? इंसुलेशन भाई जनरेट हो रहा है, ट्रेवल वेल व्हाइल चार्ज ट्रेवल इट विल डिसिपेट इट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट आल्सो। उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? इंसुलेटिंग लेयर। कौन सा लेयर? हैंस हार्ट विल नेवर बर्न। ऐसा नहीं कि धक धक करते करते बुन गया। हाँ वो अलग बात है कि कुछ का बोलता है ना सर, दिल जले हैं हम तो वो अलग बात है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं वो साइंस है। अरे आया समझ में? एक पैरा साइंस होता है, एक साइंस ऑफ लव होता है, उसकी तो डेफिनेशन ही अलग है। फिर वहां कुछ नहीं समझते, वो तो कुछ अलग ही भाषा समझता है। तो लिटिल बिट डिफरेंट। आई एम कमिंग टू दैट साइंस व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब आया समझ में? तो ये सब बना के रख दे, दुनिया के सबसे अटमोस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, बट 100% नेचर को मिमिक कोई नहीं कर पाएगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? सो हार्ट लाइक ऐसा पंप, जो इंसुलेशन, इंसुलेशन के साथ वो उसमें भी वही सेम चीज कंडीशन क्रिएट होता है, बट उसने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। तो कोई भी कंपनी ऐसा बनाता है, वो एक इसी बात का वारंटी लेता है कि हमने जो डिजाइन किया है वो लिस्ट सब हीट रेजिस्टेंट, लेकिन फिर भी लगातार आप उससे काम लोगे। क्या कोई ऐसा वाटर पंप है जो 80 साल तक बिना 1 सेकंड रुके पानी खींच के? इतने से तो पानी अंदर सूख जाएगा। ठीक है, और चलो पानी सूखे ना सूखे, मेरा कहने का मतलब तुम समझ गए हो कि व्हाट विल हैपन, इट विल बर्न आउट, डिसिपेट हो जाएगा, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हार्ट नेवर, neither it fatigues, neither it will give up. आई एम टॉकिंग समथिंग ऑर्थोडॉक्स। और अगर ऐसा होगा तो हार्ट इज इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, हार्ट इज इन अ स्टेट ऑफ, उसके अरेंजमेंट और उसकी पूरी सप्लाई वेस्कुलराइजेशन कहीं आया है ब्लॉकेज, तभी ऐसा हुआ होगा। नहीं तो अगर हेल्दी हार्ट है तो वो अपना काम तो अपने पॉलिसी और उसके सिस्टम ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंगली वो करेगा। सबको आ रहा है समझ में? तो जब मैंने ब्लड वेजल्स पढ़ाया था तब मैंने ब्लॉकेज, नेक्रोसिस, इस्चेमिया आपको समझाया था, याद आता है? तो दोज आर द डिसऑर्डर्स
मैं अभी बात कर रहा हूं कि कुछ नहीं, सारा सिस्टम ठीक है, एवरी अरेंजमेंट, इंसुलेशन, वाल्व्स परफेक्टली, एजिंग इफेक्ट के बाद भी वाल्व्स लूज नहीं हुए हैं, वो परफेक्ट है विथ इट्स स्ट्रेंथ, सब अपना काम कर रहे हैं, देन द हार्ट विल रियली फंक्शन आउट. And if not, due to age, underage, whatever other lifestyle and other impacts on the heart as a organ, क्योंकि being a part of the system, system में fail also. System में, और फेल तभी होगा जब वो स्टेट ऑफ ए होम्योस्टैसिस से गुजर रहा है. किससे गुजर रहा है? या तो अचानक एक्यूट, या एक लंबे अरसे से, जिसे हम मेडिकल साइंस में क्रॉनिक कहते हैं. क्या कहते हैं? सो सिंपल. मतलब इसको बिल्कुल इजी वे में चीजों को आप कंसेप्ट लीजिए तो आएगा समझ में. नाउ बिफोर आई मूव अहेड, अगर मैंने ऐसा लिखा है डिफरेंट स्ट्रोक रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट या कार्डियक एक्टिविटी, बात एक ही है. So here would I like to mention that there are two ways of control या regulation for that activity. One is neural, one is the neural, another is hormonal, another is hormonal. पहले मैं hormonal पे आना चाहूंगा. Just for a quick revision, hormonal, there are two hormones, NCERT में एक ही mentioned है. Adrenaline released from adrenal medulla, which is responsible to increase the heartbeat in emergency, in stress. Suddenly there is an outburst release of that adrenosympathetic system जो पूरा बना हुआ है एड्रिनल ग्लैंड पर, एसएनएस अपना सप्लाई करके रिलीज कराता है. याद करिए केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हुए मैंने, एड्रिनल ग्लैंड के दो एरिया है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. मेडुला इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम. यस और नो? और बाकी दोनों रीजन कॉर्टेक्स वगैरह किसके कंट्रोल में? एसीटीएच. तो मुझे अभी किससे मतलब है? एड्रेनलिन एज अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड. तो अचानक से आपने कोई इमरजेंसी आया और आपने उठ के दौड़ लगा दिया, या फिर किसी जगह से जंप मार दिया, या किसी जगह क्लाइम कर जा रहे हैं, कोई भी अपने डे टू डे एक्टिविटी में आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं, तो अगले ही पल विद इन सम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर ही आपका शरीर आपका साथ देता है. जो मेंटली आपने डिसीजंस लिए हैं फ्रॉम योर हायर सेंटर, इट शुड बी इंटरनली एंटिसिपेटेड बाय, किसका सपोर्ट अंदर से आना चाहिए? बाय ऑल द बैकअप सिस्टम. एंड देयर आर द टू सिस्टम ऑफ कंट्रोल, वन इज नर्वस एंड केमिकल, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. तो साथ देगा वो एड्रेनलिन अंडर इमरजेंसी टू फेस, फाइट या फ्लाइट फ्रॉम द सिचुएशन. यस और नो? दूसरा है थायरॉक्सिन. कौन सा हार्मोन? और थायरॉक्सिन डे टू डे लाइफ में ये भी हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा टू मीट द बीएमआर, बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को ध्यान में रखते हुए वो हार्ट बीट को बढ़ाएगा. क्योंकि बढ़ता हुआ हार्ट बीट से बॉडी जितना ब्लड तेजी से घूमेगा उतना थर्मल करंट जनरेट होगा और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा. यही तो काम है. कैलोरोजेनिक इफेक्ट याद आता है? अरे एक एक चीज सब करने, मैंने कहा ना कोई चीज कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, कहीं ना कहीं लिंक होके एक दिन पूरा सब रिवाइज हो जाता है. लेकिन इट कम्स विथ लिटिल बिट टाइम. तुरंत चाहने से नहीं हो जाएगा कि सब कुछ एक ही दिन में याद आ जाए. लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो तुरंत आपको रिवीजन में थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड का पूरा कंसेप्ट, कि पूरे शरीर में हमेशा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में थायरॉक्सिन का रोल है, और उसको बनाए रखने के लिए, हासिल करने के लिए जरूरत पड़ने पे हार्ट बीट को बढ़ा देना. ठीक है, ये तो हार्मोनल कंट्रोल हुआ. बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द न्यूरल कंट्रोल. एट दैट न्यूरल कंट्रोल itself is of two types: intrinsic and extrinsic, yani inside the heart and outside the heart, inside and outside. But that intrinsic system is nothing but simply the nodal system, जो इतने देर से हम पढ़ रहे थे. एक शब्द में बात खत्म. ऑफरिंग. हार्ट हैज इट्स ओन कंट्रोल. itself it has the source of energy dwelling system in form of electrical energy by those specified modified tissue type.
रिकॉग्नाइज एज नोडल टिश्यूज, जो अभी हम पढ़ रहे थे। वो तो एक बेसिक रिदम, जैसे बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम है, वैसे ही हार्ट का एक बेसिक क्या है, रिदम ऑफ बीट, जिसे हम हार्ट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 70-75 टाइम्स, एवरेज 72 टाइम्स बीट करता रहना खुद। बट इट कैन बी मॉड्यूलेटेड, बट इट कैन बी चेंज्ड आउटसाइड द हार्ट, विद इन द बॉडी, विदाउट अवर विल। स्टेटमेंट को गौर करना। आउटसाइड द हार्ट, इनसाइड द बॉडी, विदाउट विल, हमारे चाहने से नहीं, अपने आप हो जाएगा वो। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम टू द डेस्टाइन्ड प्लेस, कोचिंग तक आने तक, आप प्लेन सरफेस पे गाड़ी चला के आ रहे हैं, पैदल वॉक करके आ रहे हैं, है ना, मोर और लेस। कौन सी तेजी में आ रहे हैं? धीरे धीरे बतियाते हुए, बिल्कुल, है ना, पता नहीं कौन से डेली सोप की कहानी एक दूसरे को सुनाते हुए, ठीक है। तो योर हार्ट बीट गोइंग हार्डली 75-80, 75 विद इन नॉर्मल वॉक, प्लेन एरिया। बट द मोमेंट यू स्टेप इन द इंस्टीट्यूट एंड मूव अपस्टेयर्स, जैसे ही आप अपनी अमरनाथ यात्रा चालू करते हैं, अरे आ रहा है समझ में? सो योर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग फिजिकली अ राइज इन एल्टीट्यूड। राइज इन, तो ऐसा थोड़ी है कि अंदर एंटर करते सी वेट, है ना, कुछ दबाया, विल, कम ऑन, हार्ट बीट, स्टार्टअप मतलब कुछ तुमने ऐसा विचार किया और तो हार्ट बीट अंदर बीट ज्यादा शुरू हो जाएगा, नहीं, वो अपने आप होगा। द मोमेंट यू रेज अप योर बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी, यस और नो? तो आपका शरीर एक लोड है, एंड इट हैज टू बी मूव्ड अबव अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अपने आप वो बैलेंसिंग सेंसेशन रिसेप्टर सब अपने आप हार्ट बीट को आपके मूवमेंट्स के साथ, मस्कुलर एक्टिविटी के साथ एंटिसिपेट करेगा। तो दिस इज विदाउट विल, एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑन हार्ट विदाउट विल। तब आपके ही ब्रेन यानी सीएनएस, सीएनएस का एक फंक्शनल एरिया, ब्रेन, ब्रेन अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं, ब्रेन का ही एक फंक्शनल एरिया जो कि एएनएस रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और वहां कहीं ऐसा एक डेपुटेड सेंटर मौजूद है, नेचर ने डेवलप करके रखा है, जिसमें एबिलिटी है आइदर टू एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट और deaccelerate the heartbeat. That's the modulation which is being done extrinsically. So the extrinsic control is in the CNS region, and not PNS. It is the CNS of nervous system, or CNS represented by two physical structure in the body, brain and spinal cord. That too brain. Brain में भी हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पॉन्स, वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। उसमें भी कौन? और वहां मौजूद है एक्सेलरेटर सेंटर and deaccelerator center. Both of them works via through different parts. Accelerator center works via through SNS, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिप्रेजेंटिंग एएनएस ऑफ ब्रेन, एएनएस ऑफ, क्योंकि ब्रेन के दो हिस्से हैं फंक्शनली, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक। फिलहाल हिंड ब्रेन जो है, पूरा का पूरा हिंड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट करता है ब्रेन का, क्योंकि वहां जितने भी सेंटर्स है हिंड ब्रेन के, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम, वहां के सारे सेंटर्स बॉडी के इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले सेंटर है, वो ब्रेन के हायर सेंटर को बिना डिस्टर्ब किए खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। दैट वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आया सबको समझ में? एवरीवन? तो एएनएस ऑफ ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा हैविंग टू सेंटर्स, लेकिन खुद एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो वर्क डिवीजन है, क्योंकि जो डिसीजंस दो तरह से लिया जाता है, आइदर टू कंडक्ट और नॉट, या काम चल रहा होता है उसको डिक्रीज करना या इंक्रीज करना। डिसीजंस आर टेकन इन टू वेज। तो कभी भी शरीर में जितने भी ऐसे एक्शन जो इमरजेंसी में उनके लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, इट इज बीइंग टेकन बाय विच वर्क डिवीजन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक्सेलेरेटर सेंटर वर्क्स वाया थ्रू sympathetic nervous system, whereas deaccelerator center works through PSNS, parasympathetic nervous system.
So if we consider the human brain, this part representing the CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन का 83% रीजन represented by cerebrum, it is somatic nervous system. It is, यहां के एसएनएस और यहां के एसएनएस में डिफरेंस है. यहां वॉलेंटरीली डिसीजंस लेके हायर सेंटर्स, जो प्रेजेंस विल वाले सारे फंक्शन, जो हमारे चाहने से सारे फंक्शंस डिसाइड होंगे, वो सारे सेंटर्स सेरिब्रम और उनके लोअर एंड्स तक लोब वाइज पाए जाते हैं. सब नर्वस सिस्टम में बताया जाएगा आपको. आया सबको समझ में? लेकिन जैसे ही हम ब्रेन के हाइपोथैलेमस से लेकर मिड ब्रेन, यहां मिड ब्रेन होता है, क्या होता है? ये फोर ब्रेन का आखिरी हिस्सा, फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है ब्रेन का ही विदाउट विल डिसीजंस लेना. विदाउट विल, यहां वो सारे सेंटर से जिसमें ब्रेन डिसीजन लेता है बट विदाउट प्रायर थिंकिंग. उसके लिए ब्रेन के हायर सेंटर्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. So try to understand SNS and ANS. तो right from the beginning आपको क्या लिखवा रहे हैं? एक्सट्रिंसिक CNS, CNS में ब्रेन, ब्रेन के भी हिंड ब्रेन पोर्शन. कौन सा पोर्शन है ये? और उस हिंड ब्रेन में ये रहा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहां दो सेंटर मौजूद है. दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा हैविंग एक्सेलरेटर सेंटर and de-accelerator center. ये रहा ऐसे नोड. और अब देखिए सप्लाई कैसे आएगा. जो एक्सेलरेटर सेंटर है वो अपने नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, किसके थ्रू आकर यहां इस हिस्से को इन्फ्लुएंस करेंगे. ये जो स्पाइनल नर्व आएगा, ब्रेन का सेंटर है लेकिन उतरेगा नीचे किससे? स्पाइनल नर्व से. आया समझ में? और ये नर्व फाइबर कहलाएगा एसएनएस फाइबर. कैसा फाइबर? क्योंकि ये रिलीज करेगा एड्रीनलिन एज न्यूरोट्रांसमीटर. क्या रिलीज करेगा? एज अ हार्मोन भी वो एड्रिनल ग्लैंड से पूरे शरीर के लिए रिलीज होगा, तो हार्ट पे भी इफेक्ट आएगा. लेकिन इमरजेंसी में तेजी से डायरेक्ट एसएनएस फाइबर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ एएनएस, मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सेलेटर. एक्सेलेटर मतलब ही हार्ट बीट को बढ़ाकर इमरजेंसी का सामना करना, या बढ़ाकर नॉर्मल कर देना. बढ़ाकर नॉर्मल क्यों कर दिया? क्योंकि शरीर अब जिस स्टेट में है उसमें उतना ही हार्ट बीट चाहिए, तब तो शरीर परफेक्टली परफॉर्म करेगा. 70 के साथ आदमी कहां 100 मीटर रेस दौड़ के जीत पाएगा? कम से कम 90-95 के साथ कार्डियक आउटपुट आना चाहिए. यस और नो? तब तो वो फाइट बैक करेगा. स्टेमिना. What is stamina defined as? It is the sum of all the parameters of the body which under some stress situation work to face it is called stamina. चाहे वो ब्रीदिंग रेट हो, हार्ट बीट हो, मस्कुलर एक्टिविटी हो, एवरीथिंग.
आया सबको समझ में? और वैसे ही डी एक्सेलेटर सेंटर से डायरेक्ट क्रेनियल नर्व, कौन सा नर्व? एक क्रेनियल नर्व नीचे उतरेगा, एंड दिस नर्व विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नर्व क्रेनियल नर्व डायरेक्ट उतर रहा है, और वो भी आके, इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये हार्ट बीट को कम करके नॉर्मल पे, रेड कलर सजेस्ट दैट। आया समझ में? दिस इज व्हाट? पी एस एन एस फाइबर, कौन सा फाइबर? और ये रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, क्या रिलीज करेगा? एड्रेनलिन, एसिटाइल कोलिन, दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हार्ट बीट बढ़ाएगा और ये हार्ट बीट कम करके नॉर्मल, जो बढ़ा हुआ था जब आदमी रेस्ट पे आएगा, दोबारा कम करके नॉर्मल पे ले आने के लिए ये जिम्मेदार है। आया समझ में? लेकिन ये जिस क्रेनियल नर्व से नीचे उतरता है वो क्रेनियल नर्व है वेगस, the only cranial nerve which comes down the neck region to be get wandered throughout the body, पूरे abdominal, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग होती है, फिर लंग्स है, डायफ्राम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सब में वेगस नर्व की। और हमेशा इस वेगस नर्व में जितने भी फाइबर्स होते हैं वो पीएसएनएस ही होते हैं। क्या होते हैं? आया समझ में? दिस दिस नर्व इज और स्पेशली डेडिकेटेड टू पेरिफेरल, सॉरी, टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। 10th cranial nerve is a component of parasympathetic nervous, क्योंकि उसमें जितने भी बंच ऑफ फाइबर्स है सब अलग अलग नीचे के ऑर्गन्स में जो भी इंपल्स लाते हैं, मैसेजेस लाते हैं, वो किसी एक्टिविटी को डिमिश करने के लिए, क्या करने के लिए? स्लो डाउन करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि ये इमरजेंसी सिस्टम है और ये वही काम को नॉर्मल सिचुएशन में हैंडल करता है। कौन सा सिस्टम? PSNS. So do the heartbeat. Heartbeat is a parameter of body. Need two types of decision under emergency and normal. Emergency में SNS और normal में PSNS. ये तो मैंने पढ़ाया, बट क्वेश्चंस कैसे आए हैं पिछले सालों में? कैंची से काट दिया। What will happen if the vagus nerve being cut down, damaged? ठीक है ना? What will the resultant impact on? अब ए बी सी डी करके ऑप्शन लिखा है, हार्ट बीट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सारे अलग अलग जो फंक्शंस, क्योंकि सबको ही कंट्रोल, सबको आ रहा है समझ में? तो जिस ऑप्शन में कंट्रास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं, गौर करना, हार्ट बीट विल इंक्रीज, हार्ट बीट विल, एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन विल स्टॉप, वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में या नॉर्मल सिचुएशन में सारे चीजें कम कर देना, रोक देना पीएसएनएस की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक चीज को पीएसएनएस बढ़ाता है, शुरू करवाता है, वो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन। कौन सा सिक्रीशन? क्योंकि इमरजेंसी में एसएनएस हर चीज को बढ़ा देता है, हर चीज को बढ़ा देता है, हाइप मतलब उछाल देता है, मतलब हाइप उछाल देना, मतलब इमरजेंसी में सिर्फ एक ही चीज को डिमिश करता है, दैट इज आवर हंगर, एपिटाइट एंड सिक्रीशन, मतलब एवरी गैस्ट्रिक मोटिलिटी पूरा बंद। क्योंकि इमरजेंसी में अगर तुम भूख के लिए क्रेव करोगे तो काम, कंसंट्रेशन कैसे आएगा? अरे यस और नो, है ना? फ्रेंड का फोन आया है कि वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट आया है और तू आखिरी से सेकंड है। खुशी के मारे ऐसा ऐसा करेगा, और खाना खाओगे क्या? नहीं, तुम थोड़ा सा डिप्रेस, अब वो तुम दिखा रहे हो कि सही में वो अलग बात है, क्योंकि सम हैज वेरी टैलेंट टू कंट्रोल देयर इमोशंस, कि घर में जाते से ऐसे हो जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं ऐसा, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो दैट इज, है ना, दीज आर ऑल साइन ऑफ एडोलेसेंस। आई एम स्टिल इन द कोर्स, दीज आर द साइन ऑफ एडोलेसेंस। नहीं ठीक है, नथिंग बैड। सबको आ रही मेरी बात समझ में? इधर ये सेटअप समझ में आया? जस्ट पास मी अ बुक। So chapter circulation, page number
287 रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आई डू होप आज आपका होमवर्क है, घर पे जाके 5 मिनट भी नहीं लगना इस पैराग्राफ को, या अभी आप अपने लीजर टाइम में बीच में जो फुर्सत के पल मिलेंगे उसमें आप देखिए जरा पढ़ के। हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्रेक टाइम तो हमारा फुर्सत की तो पल है। अरे आया समझ में, इधर देखिए, आपस में गॉसिपिंग ना करके अपना लंच लेके फिर आप बैठ के जल्दी से देख सकते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ के देखे और इस डायग्राम से टैली करे, और ना समझ में आए देन यू कैन आस्क मी, बट यहां पर वैसा मेंशन्ड है क्योंकि जैसे जैसे हार्ट बीट बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट ऐसे करके लिखा हुआ है। तो कार्डियक साइकिल के साथ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना, आया हुआ क्वेश्चन, मतलब बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चन काफी बार अलग अलग पीएमटीज में पूछे गए कि अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, है ना, द बिहेवियर ऑफ हार्ट या व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हार्ट बीट। तो उसका सीधा ग्रेटर द स्ट्रोक वॉल्यूम ग्रेटर द कार्डियक एक्टिविटी, ग्रेटर द, सीधा सीधा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, लेकिन उसको साबित करना क्योंकि एनसीईआरटी में। अब आप आइए पेज नंबर, अच्छा सबको ये क्लियर है, डबल सर्कुलेशन मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। इस डिसऑर्डर्स में अभी तक कैड पढ़ाया है मैंने, दो तरह के, है ना, और अब रह गया है बस इतना सा पोर्शन, ये और ये, इसका आपस में रिलेशन है, ये पढ़ाएंगे साथ में ईसीजी। लेकिन आज पूरा ये पढ़ाया, लास्ट 2 डेज 1 डे से हमने ये पूरा देखा। सर्कुलेटरी पाथवे का पूरा पैराग्राफ क्लियर है, सिंगल डबल ओपन क्लोज्ड एवरीवन। फिर लिम्फ का भी कंपैरिजन, भले हमें एलवीएस शुरू करना है अगले क्लास, मेरी बात आ रही है समझ में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें मैंने ये डायग्राम से ये वाला पैराग्राफ अच्छे से समझा है कि कैसे एक तरफ से ब्लड सप्लाई आता है, एक्सचेंज करके चला जाता है, और वो टिश्यू फ्लूइड है जिसको रिकलेक्ट करके फिल्टर करके दोबारा ब्लड को लौटा देना, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फ। और रेस्ट इससे पहले का तो आप समझ ही गए हैं कैसे वर्सटाइल तरीके से हमने कवर किया है। ब्लड ग्रुप, सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा है, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के क्वेश्चन, कोआगुलेशन तो पढ़ा ही, साथ ही साथ हीमोफीलिया पढ़ते हुए सेक्स लिंकेज क्या पढ़ लिया आपने पूरा, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब किसी भी बीमारी के साथ क्वेश्चन आया तो संडे के टेस्ट सीरीज में बहुत ही वर्सेटाइल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, मतलब पैनिक मत होइए, आपको तो मैं कहूंगा कि पढ़ के भी आने की जरूरत नहीं है ना, आप तो जो मैंने पढ़ा दिया है क्लासरूम में बस उसको रिकॉल करें, रिटेन करें, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत ही इजी वे में पूछा गया है, लेकिन वही है जरा सा ट्रिकी, मतलब गलती कर दोगे समझने में तो गलत हो जाएगा, बाकी नहीं तो बहुत इजी पेपर है। तो यही तो होना चाहिए, यही तो तुम्हें फाइनल डे एक्सपीरियंस करना है एग्जाम हॉल में, कि क्वेश्चन देखते सी खुशी हो जाएगी, अरे कितना छोटा छोटा लिखा, ऑप्शन ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग होता है ना क्वेश्चन देख के डर लगता है, अरे बाप रे इतना तो लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन ही 4 लाइन के लिखे हुए हैं, फिर एक एक ऑप्शन 3 3 लाइन के लिखे हुए हैं, तो वहीं आधा जो आपकी हिम्मत वहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसे इमोशन, नाउ दीज आर दोस इमोशनल टर्बुलेंस व्हाइल यू अटेम्प्ट, आपकी जगह मैं भी अगर बैठा हूंगा तो आई विल ऑल्सो गो थ्रू द सेम मेंटल सिचुएशन, लेकिन हमें इसी पर ही जो है जीत हासिल करनी है। मैं डे 1 से आपको कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको इस तरह की भी चीजों पे वर्कआउट करना होगा। एंड एट लास्ट हिस्टोलॉजी, पूरा ब्लड, और इतना सा पैराग्राफ है लेकिन एक फाइन टेक्सोनॉमिक टच दिया गया है इधर, यस और नो, क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म्स। इंडीड मैंने आपको टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन बिटवीन हमने कॉकरोच पढ़ना भी चालू कर दिया है। आखिरी में ये तो नहीं बोलोगे कि सर कॉकरोच कहां गया। वी हैव डील विद द टू सिस्टम्स टिल डेट, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी, क्लियर। ऐसे ही नर्वस पढ़ेंगे तो उसमें फिर से नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच बता देंगे एनालिडा के साथ। किसी को कोई डाउट, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू।